which is anxiety, right? So just to explain, anxiety हम तब कहते हैं जब एक स्ट्रेस एक लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे साथ रह रहा है। और जब तक हम स्ट्रेस में होते हैं, नॉर्मली ये होता है कि हमें पता होता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस। प्रॉब्ली एक प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन मुझे मीट करनी है, एंड वंस दैट डेडलाइन इज मेट आई विल बी आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। वो जब तक अचीव नहीं हुआ, या जो एग्जाम्स हैं उनका स्ट्रेस है, तो वो चीज समझ में आती है एंड वी कॉल इट स्ट्रेस। बट इफ देर इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस विच इज देयर इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेस है जो काफी लंबे टाइम तक बना हुआ है, और आप एक ऐसी स्टेट पे आ गए हैं जब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका कॉज क्या है, बट आप बहुत परेशान और रेस्टलेसनेस महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से। आप कोई मेजर चीज अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका ब्रेन उस प्रोसेस की तरफ जा ही नहीं पा रहा उस एंजाइटी की वजह से। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंजाइटी। एंड लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम सुचिता कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। Anxiety can crop up because of various reasons. It can be anything that may, have a snowball effect right from your childhood, and it may kind of bombard when you are in your, mid 30s, 20s, 40s. It can be any time. So, first thing is to identify the root cause of it by accessing the subconscious mind, because the subconscious mind it'll have a Pandora box of all the feelings, emotions that we would have gone through in our lives. So on the surface level, we may not be able to tell, okay, what is the exact reason? Or you may just come up with two things, which may not actually be the root cause. Yes. So when we access the subconscious mind through hypnosis, that is when the actual root cause for anxiety is revealed. But however, to cope up with anxiety, simple and effective, but at the same time, most powerful tool also can be used. Right. This is called the 1-point exercise. Okay. So in this, what happens is we just have to first take ourselves to the relaxed mode and take our attention to the mind space. Right. And assess in your mind on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, what is the level of anxiety? Just close your eyes. Anybody can do this. Okay. Concentrate on your breathing. And then in your mind space, just assess from 1 to 10, 10 being the highest level of anxiety, where it is. And you can tell me the number. Okay, probably I'll pick up 6 for now. Okay. Yeah. Fine. So now take your attention again to the mind space and shift that anxiety all the way down to the chi point, which is 3 fingers below your belly button. See that anxiety shifting all the way down and allow it to disintegrate. And allow yourself to calm down further. Take your attention to the mind space. And now, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, where do you see the level of anxiety right now? It comes down subsequently. I think I'll rate it at 1 or 2 now. Yeah. So this is a very simple exercise. Absolutely. Yeah. So even if at all we are going out for any meetings, any interviews, or any challenging situation that we have to face, and it is creating a kind of a stress, the first thing to do is to reduce the level of stress and anxiety. Wonderful. So, and this is called as 1-point exercise, right? Yes. बहुत बढ़िया। जो सुचिता कह रही हैं, एंजाइटी का जो रूट कॉज है वो डीप डाउन आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या प्रॉब्ली सम अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी हो सकता है।
और कई बार सिर्फ सरफेस लेवल पे अगर हम सोचें तो इसका रूट कॉज शायद हमें ना मिले, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी सीक हेल्प, वी विजिट अ थेरेपिस्ट और डॉक्टर, विच एवर सूट्स यू। बट जब तक आप उनके पास जाते हैं और ये हेल्प लेकर के आते हैं, एक सुंदर सी एक्सरसाइज सुचिता ने हमें बताई है। पर सबसे बड़ी परेशानी यही है जो हम नहीं करते हैं, वी डू नॉट सिट विद आवरसेल्व्स एंड वी डू नॉट गिव दैट टाइम टू आवरसेल्व्स टू हील। अपने आप के साथ बैठ के समझने के लिए कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बार आपको ये चीज़ जब समझ में आ जाती है, जब भी आप रेस्टलेसनेस महसूस कर रहे हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, सिट डाउन विद योरसेल्फ, अपने साथ बैठें शांति, किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपको डिस्टर्ब कोई नहीं कर पाए थोड़ी देर तक के लिए, वहाँ बैठें। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने आप को काम करके सोचने की कोशिश करें कि आप क्या फील कर रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। अगर जैसे सुचिता अभी बता रही हैं कि आपको रीज़न नहीं भी समझ में आ रहा, तो कम से कम आप उस रेस्टलेसनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अपने माइंड में पहले आप ये सोचें कि अभी आपकी एंजाइटी किस लेवल पे है ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, और उसके बाद आप ये महसूस करें, अपनी बॉडी को ये बताएं कि वो एंजाइटी जो है अब धीरे-धीरे मेरी बॉडी से नीचे की तरफ शिफ्ट होते-होते मेरी बेली बटन से 3 फिंगर्स नीचे के गैप तक जा रही है, एंड इट इज़ ग्राउंडिंग, मतलब वो मेरी बॉडी को लीव कर रही है, एंड दैट एक्चुअली हैपेंस। आप इमीडिएटली महसूस करेंगे कि यू आर रिलीव्ड। मतलब हो सकता है कि मैं कंप्लीटली वो चीज़ नहीं होगी, बट यू विल फील एन ईज विद इन योर सेल्फ। और जब हम ये चीज़ वी सिट विद आवर सेल्स ऑन अ डेली बेसिस और ये चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप काफ़ी हद तक शांत होता जाता है, और ये जो हमने अपने दिमाग में ही ये सारी चीज़ें बना ली होती हैं, वी गेट रिड ऑफ दैट, और अब हमारे दिमाग में कुछ प्रोग्रेसिव करने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए नई एनर्जी और नया स्पेस जनरेट होता है। तो आई एम रियली लविंग इट, दी एक्सरसाइजेज दैट सुचिता इज शेयरिंग। जैसे ओवर थिंकिंग के लिए हमने लेड एक्सरसाइज की है, एंजाइटी के लिए हमने 1 पॉइंट एक्सरसाइज की है। अगर आप अभी तक ये नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि जस्ट टेक अ पेपर एंड अ पेन और ये की चीज़ें नोट कर लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, इट विल हार्डली टेक 5 minutes and you will be out of that negative space. So let's come to the next point, क्योंकि